नमस्कार। सबसे पहले समस्त देशवासियों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ऐसे भी खास दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण दिन होने का दो कारण है। एक तो नया साल का शुभारंभ हो रहा है और दूसरा स्टूडेंट के हित में एक बहुत जरूरी महत्वपूर्ण सूचना दी जा रही है और उनसे कुछ महत्वपूर्ण विषय पे विमर्श किया जा रहा है। निश्चित तौर पे ऑनलाइन का जमाना है और ऑनलाइन के जमाने में ऑनलाइन के विषय पे बात करने के लिए महत्वपूर्ण लोग कौन होंगे? तो वही होते हैं जिनको डिजिटल में काम करने का लंबा अनुभव है। आज हमारे ये खास दिन इसलिए भी है क्योंकि डिजिटल और ऑनलाइन के विषय पे बात करने के लिए जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो है मिस्टर कुणाल भारद्वाज, जो कि डायरेक्टर है डेली हंट ग्रुप के। और डेली हंट आज के जमाने में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पूरे देश में उसके लगभग 50 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। यूं समझ लीजिए तो हर दिन कम से कम 5 से 6 करोड़ लोग डेली हंट और जोश को इस्तेमाल करते हैं। तो आज ऑनलाइन का स्टूडेंट के लिए, पढ़ाई के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ कुणाल भारद्वाज सर हैं। वो आपको बताएंगे कि स्टूडेंट के पढ़ाई के लिए ऑनलाइन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो कुणाल सर प्लीज। Thanks, sir. Thanks, Rupesh, sir. So, first of all, let me brief a little about myself. Right. In fact, I am from Bihar itself, from a place called Siwan in Bihar. Right. And close to 14 years of experience. In fact, I worked with Textbook as a vice president in the past. और Daily Hunt के लिए भी we built a app which was called Daily Hunt Exam Preparations, which was focused on government jobs way back in 2015. मतलब 2015 में when online education was not that prominent, at that time we had built this app and we had got around 15 lakh of students coming to this app. Right? Somehow at that point of time, online education was not that prominent. Monetizing was becoming a little difficult for us. So we had to shut it down. But I feel now is the time, especially after COVID, students will realize what's the importance of online education. So currently also I'm building another platform called Daily Learn, right, which is again focused. See, I'm more passionate about students of Bharat. The students coming from smaller towns or rural areas. So I'm more passionate, towards building something great for them, towards making an impact in their lives. So online education, if you ask me, right, especially after COVID. See, first of all, after I guess 1918, when the Spanish flu came, and it it was all over the world. I guess after almost close to 100 years, we saw the pandemic of this scale, which is COVID-19. इससे पहले the world had never seen something like that, and बिल्कुल। now in fact we have started to live with the pandemic. अब ऐसा नहीं है कि we are afraid of that pandemic. Slowly we have started to adopt it as our in our day-to-day lives, right? It has become a part of our life. So obviously, whatever we do from here on, we have to take COVID-19 into consideration, right? And that's precisely बिल्कुल। the reason why online will gain even more prominence in future, right? So jitni zyada, I mean, sir, it's in all honesty, the more COVID-19 spreads, and then the more we try to safeguard ourselves, we'll have to move to online. There is no other way. We'll have to keep ourselves as much safe as possible. Offices are also working remotely. So that's another signal that world is moving towards offline or remote work, or even anything related to which requires physical involvement. That's slowly moving towards the online areas. So I just recall. In fact, if you ask me, I was not that great in academics myself. Uh, I it might come as a surprise to many of you, but I actually had 29 marks in maths in my plus two. And one of the reasons, why I got so less marks in my plus two is, see, when
you go to a smaller town, there is usually the lack of quality learning options which they have in their hands. स्कूल्स होते हैं, छोटे स्कूल्स होते हैं, या स्कूल्स होते भी हैं तो वहां पे टीचर्स शायद उस क्वालिटी के नहीं होते हैं, राइट? स्टूडेंट फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज एंड बिल्कुल ट्यूशन सेंटर में जाते हैं, ट्यूशन सेंटर में जाने के बाद भी possibly the kind of learning options they want to get, they do not get that. And the only option they have, पटना चलते हैं या फिर कोटा चलते हैं या फिर दिल्ली चलते हैं. Right. I also felt the same. मतलब मेरे साथ भी almost यही situation थी. I guess most of the students also who are watching this will somehow agree to it that somewhere anyone who is staying in a smaller town will agree to it that they face the same issue. कि वहां पे उन्हें गाइड करने वाला कौन है, गाइडेंस देने वाला कौन है, राइट? पटना में जाके या कोटा में जाके द ओनली थिंग विच चेंजेस इज द एक्सेस ऑफ बेटर एजुकेशन, जो शायद एक छोटे शहर में पॉसिबल नहीं हो पाती है. एंड प्रिसाइसली दैट इज द रीजन व्हाई वी स्ट्रेस मोर ऑन ऑनलाइन, बिकॉज थिंक ऑफ इट, if you go online, you are giving an option even to a student in the remotest town to get the same level of education which he might have got in Kota or Delhi, and that too at his doorstep. Correct. Maybe on mobile, on his desktop. अगर students 4-5 घंटे YouTube पे बिता रहे हैं तो 2 घंटे अगर online learning पे बिताते हैं, that will change their life overnight, and it might help them in building their careers for future. तो कुणाल सर, क्या ऑनलाइन अभी के स्टूडेंट में बिहार के बच्चे जैसे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं, उनको ऑफलाइन क्लासेस की आदत पड़ चुकी होती है, तो क्या वो बच्चे उसी तरह का एजुकेशन ऑनलाइन में पाएंगे? मतलब उनका सेटिस्फेक्शन लेवल वही होगा जो स्टूडेंट ऑफलाइन में जैसे पढ़ते हैं? सर, there are two things, right? The first thing is कि जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं, of course when they move online, and they move online to a platform which is providing quality education, right? Quality content. The teachers are experienced. So of course, जो उसकी existing learning experience है उससे तो enhanced होगा, definitely, right? There are two aspects. One is the how the teacher is teaching, the quality of the teachers, the quality of learning options, how you are actually presenting something to the students, and second is how you bring it online so that the student is interested. Online is a very interesting medium, right? See, offline में when the students are sitting inside a class, it's very easy to track कौन ध्यान दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है. You can ask the students, but in online you have no control. So the only way to actually incite the interest of the students is to make sure that your entire content pedagogy, the way you present the things, the way you demonstrate the things to the students, that becomes a lot more interesting and engaging. अगर वो interesting engaging नहीं होगा तो then he will go off. So combining both of them, that will make a great experience for the students. एक्चुअली जैसे ऑफलाइन क्लासेस में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनके साथ अगर कोई सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जैसे कि टीचर अच्छा कंटेंट दे रहे हैं लेकिन सामने एक सामान्य सा बोर्ड लगा हुआ है और उसी सामान्य बोर्ड पे टीचर पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट को उससे भी कोई परेशानी नहीं होती है. लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई में टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए. मतलब अगर कोई स्टूडेंट, हाँ, तो क्या हम लोग उसको उस लेवल पे ले जाने में मतलब सक्षम होंगे कि उनका रिक्वायरमेंट जो है वो घर बैठे स्टूडेंट उसी लेवल का क्वालिटी एजुकेशन ऑनलाइन के माध्यम से अवेल कर पाए? See, whiteboard, that's obviously not a very great option for the students. Inside a classroom, yes, जब बच्चे क्लास के अंदर हैं तो of course that's a very, very closed loop environment. So, they might get the same feeling. But when they are online, possibly we have to use a lot of other interventions in the same. For example, maybe, adding an animation. For example, if you are showing some concept and adding a working model of that concept in the video, that adds a lot of value. या फिर आप flower के बारे में बता रहे हैं and you are actually dissecting the flower right in front of the student, and possibly there is an animation which is happening which is actually showing all the parts, then that helps understand the student and clears his concepts, so that कि शायद आज से 2, 3, 5 साल बाद भी he will not forget it. So visualization is very important. I mean, of course, while what you teach, how you teach is important, but how you make the student visualize it. It's like a movie theater, right? जितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी होगी उतना ज्यादा देर तक बच्चा उसको रिकॉल कर पाएगा. So of course there are a lot of interventions which are happening,
digital whiteboards. Some people are using animations. There are a lot of people who are using some different simulations. There are 3D simulations. There are automated simulations. So you use all of that in your online class to make the experience at least 5 to 10x better than a normal classroom experience. बिल्कुल। ऐसे तो डेली लर्न के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे, लेकिन अगर हम लोग स्टूडेंट से वो साझा करना चाहें कि डेली लर्न का एक ब्रीफ प्लान क्या है, किस तरह से वो स्टूडेंट को मतलब ऑनलाइन एजुकेशन में कनेक्ट करेंगे और बाकी लोगों के कंपैरिजन में बेहतर सर्विस देंगे, क्यों उनको डेली लर्न के साथ जुड़ना चाहिए, ऐसा कुछ आप बताना चाहें जो अलग होगा? Right, sir. So first of all, let me tell you, why we started building Daily Learn. Right. जी बिल्कुल। As I told you, right, that I was someone who was not able to get the concepts. Probably I did not get the guidance, and I flunked in maths, which I honestly accept. But somehow it remained with me कि क्या हम अगर बच्चे को, किसी भी स्मॉल टाउन के बच्चे को एक बेटर लर्निंग ऑप्शंस देते, then possibly I would have stopped more Kunals from scoring just 29 in their maths, right? So अच्छा हुआ आपका अच्छा मार्क्स नहीं आया था, अगर अच्छा आया होता तो आप स्टूडेंट के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचते। and somehow इसी बहाने जी। And I've also seen very closely the exact education scenario in Bihar. The students are brilliant, no doubt. Each and every student, if provided the right opportunity, can do wonders. Right? It's just about actually having that right opportunity at the right time. अगर किसी भी बच्चे को मैं बिहार के देखता हूं तो मुझे लगता है उसके अंदर पोटेंशियल है. There is no doubt. There is immense potential in any student of Bihar. Right? बिल्कुल. And that's precisely the reason why we built Daily Learn, to reach out to not the audience which probably the major edtech firms in India actually counts on, but to capture the real Bharat we call. There is a difference between India and Bharat, right? While tier 1 metros, everything you call as India, there is a separate Bharat altogether for whom their needs are different, their use cases are different. These are the students जिनके लिए कि pass होना is the biggest achievement. And there are a lot of students who want to get pass in their exams. There are a lot of students who aspire to do something, but they are not getting the right guidance. वो clueless है कि क्या करें. Exactly. And if we provide something to them, if we reach out to them and handhold them, see, it's very easy to onboard someone who is scored 95, 98% and make them achieve something. But when you pick up the hand of a person who is actually scoring 35, 40%, and then move them from 40% to 70%, that's a tremendous improvement, sir. That's the impact which will help the student in the lifelong. So that's precisely what we do with Daily Learn. We took online as a medium. We tried to make the experience much better through online so that the student start getting engaged on the platform. And at the same time, we also thought that, there should be a lot of interventions which should happen with the learning. For example, can you make a student remember some 5-6 pages in just 5 minutes? Is it possible? It's possible. Our teachers at times do that, right? Is it possible where Excellent. And then these are all desi tricks. We all have heard Pandit Badri Prasad Har Har Bol, right? And you learn the concept of trigonometry, but it's very important, and that helps the students recall. We call it mnemonics. But mnemonics is a very strong memorization techniques, and there are multiple memorization techniques for multiple use cases. तो वो सारी चीजें हेल्प करती है सर। जी, इन टोटल हम लोग ये बोल सकते हैं कि किसी भी स्टूडेंट को अगर ऑनलाइन में बेहतर करना है तो उनको दो तरह का रिक्वायरमेंट, एक तो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए बढ़िया, और दूसरा कंटेंट अच्छा चाहिए। तो डेली लर्न और इन्वेंटर्स के कंबाइंड इम्पैक्ट से निश्चित तौर पे ये हम सारे स्टूडेंट को ये एश्योर कर सकते हैं कि हम लोग ऑनलाइन में भी बेहतर एजुकेशन उनको दे पाएंगे। राजेश सर, आप बहुत चिंतित रहते हैं स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को लेके, बच्चों से बात करते हैं कि इनके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, तो कोई ऐसा चीज जो आप कुणाल सर से जानना चाहें उनके? एक्चुअली पहले तो कुणाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह से आप सोच रहे हैं बच्चों के लिए। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप कुछ पॉजिटिव सोचते हैं
और रियली में कुछ करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, बिल्कुल, तो अच्छे लोग आपको मिलते जाएंगे। मतलब आप जो अच्छा होना होता है तो हो ही जाता है। तो अच्छे लोग आपको मिलते जाएंगे। तो इसी कड़ी में हम लोगों की मुलाकात कुणाल जी से हुई, और मेरा बस ये सोच था कि हम हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचाएं। एजुकेशन नहीं बल्कि क्वालिटी एजुकेशन बोले, बिल्कुल, कि हर बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे। और Right. ये केवल ऑफलाइन से संभव नहीं था, क्योंकि हर बच्चा पटना आके पढ़ाई करे ये पॉसिबल नहीं है। कई वजहों से बच्चे अपने होम टाउन में रहना चाहते हैं, जी, उनकी कुछ मजबूरी है और उनका कुछ अपना एक लगाव भी है, एक फिनेंशियल लिमिटेशंस भी आप भी बोल हो सकते सकता हैं। है। Right. तो क्या हम उनके घर पे ही वो क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा सकते हैं? तो बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। हमारे पास जो कंटेंट है, जो हम यहाँ पटना क्लासरूम में में डिलीवर करते हैं, अगर उस कंटेंट को एक एक बच्चे तक, उसके घर तक पहुंचाने का एक माध्यम मिल जाए, तो बिल्कुल, हम उसको डेफिनेटली बहुत अच्छे से पहुंचा सकते हैं। मतलब एक एक रूरल एरिया में भी हम लोग पहुंचा सकते हैं। तो कुणाल जी से जब बात हुई, जी, तो डेली लर्न एक माध्यम ऐसा हमको लग रहा है कि बन रहा है, जिससे कि हम अपनी एजुकेशन को वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम जो है इसमें आगे बढ़ रहे हैं। और कुणाल जी तो बहुत सारी बात क्लियर कर ही दिए कि कैसे हम बच्चों तक एजुकेशन पहुंचा पाएंगे और डेली लर्न का सोच क्या है। इन्वेंटर्स इसी सोच से आगे बढ़ रहा था और डेली लर्न का साथ मिला, जिससे कि हम बच्चों तक, एक एक बच्चों तक ये क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा सके। तो इस मुझे लगता है को, कि इसमें एक लाइन हम जोड़ना चाहें अगर, हाँ, नॉर्मली जैसे आप कह रहे हैं कि जो बेहतर कंटेंट है उसको गांव गांव तक पहुंचाना, बिल्कुल, तो हमको नहीं लगता है कि डेली लर्न से कोई बेहतर एक्सपीरियंस वाले लोग होंगे जो कि गांव गांव तक एजुकेशन पहुंचा सके। न्यूज ही पहुंचा रहे हैं तो आप कुछ भी न्यूज पहुंचा बहुत सकते पहले से पहुंचा हैं, रहे बहुत हैं पहले से पहुंचा रहे हैं, और अब आप एजुकेशन पहुंचाना चाह रहे हैं, तो उसमें आपका आप, एक्सपर्टीज भी है। हाँ, तो आपके पास पुराना अनुभव है। बाकी लोग जो है वो अभी के समय में एजुकेशन ऑनलाइन में ही पहुंचा रहे हैं, तो उनके पास अभी ताजा ताजा अनुभव है, लेकिन ये पहले से पहुंचा रहे हैं और अब ये एजुकेशन में आ रहे हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि इनका एक्सपीरियंस जो है बाकी लोगों के एक्सपीरियंस से थोड़ा ऑलरेडी लीड बहुत लेके ज्यादा है, क्योंकि इनका एक्सपर्टीज है लोगों तक कंटेंट पहुंचाने का। कंटेंट किसी भी फॉर्म में उनको पहुंचाने का एक्सपर्टीज है। तो हम, यही कारण था कि इन्वेंटर्स जो है इंटरेस्ट शो किया कि हम जो है इनके प्लेटफॉर्म का यूज करके जी, अपने कंटेंट को एक एक बच्चों तक पहुंचाए, जिससे कि हर बच्चा को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, गांव गांव तक मिल सके, गांव गांव तक मिल सके। कुछ ऐसी अपेक्षाएं जो आप कुणाल सर से पूछना चाहें कुछ बच्चों के लिए? हम कुणाल जी बस ये चाहते हैं कि हम बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाए, तो जो फिनांस है वो बैरियर न बने, हर बच्चा तक एजुकेशन पहुंचे। और उसको हम लोग कैसे कर पाएंगे कि हमारा जो है हम कर भी पाए और बच्चों के लिए पैसा बहुत बड़ा बैरियर न बने, कम प्राइसिंग में भी हम बच्चों तक एजुकेशन पहुंचा सके। इसका भी हमको एक तरीका निकालना पड़ेगा, जिससे कि हर बच्चा एजुकेट हो। एक्चुअली होता क्या है कि एजुकेशन ही देश को बड़ा बनाएगा, बिल्कुल, और केवल सरकारों के नियम बनने से एजुकेशन लाइन आप सुनते ही हैं, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और केवल सरकारें नियम बनाती है, उससे एजुकेशन एक एक लोग तक पहुंचे, ये नहीं संभव होगा। सामाजिक क्रांति लानी पड़ती है एजुकेशन के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन्वेंटर्स और डेली लर्न मिलके वो सामाजिक क्रांति जरूर लाए, और कुणाल जी का उसमें पूरा सहयोग रहेगा। क्या कुणाल जी? नहीं, ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो लोग फाइनेंशियली उतने सक्षम नहीं है, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ब्रिंग देम इनटू द एम्बिट. Finance should not be a hindrance for them. And of course, when you move online, that's where we have the strength that when you move online, there is something called economies of scale, because now you can reach out to multiple students at one go, which is a little difficult in offline. Maybe in offline there is a particular limit, like maybe 3,000, 5,000, 10,000, max 50,000, right? But what's beyond that? So that's where to reach out to economies of scale, online is a better medium. And that's why it's also possible to have all those students or parents included, possibly for whom financially it's not feasible right now to get the same quality learning options. बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब हमारा ये है कि भाई हम लोग ऑफलाइन तो कर ही रहे हैं जी, और अगर हम बोले तो ये बोलना हम अभी भी स्वीकार करते हैं कि ऑफलाइन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है।
लेकिन जो बच्चा ऑफलाइन में नहीं आ पा रहा है किसी वजह से, उस तक भी क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे, तो इसके लिए हम लोग ऑनलाइन माध्यम से उन तक एजुकेशन पहुंचाएंगे। और जैसा हमारी प्लानिंग है, बहुत जल्द हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिल्कुल लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे कि हम किस तरह से आपस में मिलकर ये काम करने वाले हैं। और मतलब पूरा मॉडस ऑपरेंडी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको लेके कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोगों को ये लग रहा था कि ये समाचार साल के पहले दिन से बेहतर और कोई दिन हो नहीं सकता है कि स्टूडेंट से डिस्कस करें हम लोग। ठीक है, हम लोग प्रोसेस में हैं, बस 2-3 दिन में ही इसका अनाउंसमेंट पूरी तरह से करने वाले हैं। लेकिन फिर भी हम ये सोच रहे थे, हमारी टीम ये सोच रही थी कि न्यू ईयर के दिन अगर हम ये चीज अनाउंस करें तो ज्यादा बेहतर होगा और एक हिस्ट्री बनेगा कि भाई हम लोग साल के फर्स्ट डे पॉजिटिव एनर्जी का जो है शुरुआत कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर पेरेंट्स का और बच्चों का भरोसा बना रहा, जैसे बना हुआ है, आगे भी बना रहा, तो हम एक एक बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाएंगे और इसी को लेके हम लोग उनके एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर हम लोग परफॉर्म करके दिखाएंगे। कुछ ऐसा चीज कुणाल सर जो आप और इसमें ऐड करना चाहें? सर पहली चीज है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं, राइट, सो any student should not feel, you know, at any point of time that they cannot do something, right? ये students जो देख रहे हैं उनके लिए बहुत important है। चाहे वो कोई भी गोल हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, अपने आप को कभी अंडरमाइन ना करें। That's something which is very important for each one of them. No matter उनके पास कैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कैसे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं, but they shouldn't undermine themselves. I mean, possibly, you know, someone who is scoring 33% can crack IIT next year. It's very much possible. It's not that, you know, they should undermine themselves and think, because that's the point where it can make or break you. The moment you think yourself that, you know, you cannot do that, then you will actually not do that. So especially from the students' points of view, that's very important to understand, and they must focus on that. वो कभी भी कोई भी goal, objective, they shouldn't feel कि ये मेरे reach से बाहर है या it's out of reach for me. बिल्कुल। And of course, you know, together as we spoke, I guess we have the expertise in online, and we have, you know, almost for Daily Hunt and Joe's, it's close to 50 crore users. It's past 8-9 years of experience, all that coming along. And I think that Inventors has, you know, done something remarkable in the last few years in Patna. I was actually in Patna somewhere in September, October this year. And trust me, I heard a lot about Inventors at that point of time. And, you know, I mean, congratulations to the entire Inventors team for whatever you have achieved in such a short time. That too under COVID, right? That's remarkable. थैंक यू वेरी मच सर। और आने वाले टाइम में और भी दोनों हम लोग डेली लर्न और इन्वेंटर्स दोनों मिलकर और भी बहुत कुछ अचीव करेंगे। बिल्कुल। तो हमको लगता है कि जो मतलब बस लास्ट हम कंक्लूड कर दें कि कुणाल जी, बस हम एक लास्टली कंक्लूड कर दे रहे हैं कि हमारा प्लानिंग क्या है। हम लोग बहुत जल्द ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी आने वाले हैं और उसमें हम डेली लर्न के साथ मिलकर ये ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे। मतलब एक एजुकेशन को रिवोल्यूशन बनाना है, ऑनलाइन के माध्यम से एक एक बच्चे तक एजुकेशन पहुंचाना है। इसलिए हमने डेली लर्न के साथ, जो कि डेली हंट की कंपनी है, उसके साथ टाई अप का प्लान किया है और उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी जानकारी हम देंगे और हर बच्चों तक एक क्वालिटी एजुकेशन ऑनलाइन के माध्यम से पहुंचाएंगे। थैंक यू एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर। कुणाल सर को जुड़ने के लिए बेंगलोर से कुणाल सर अभी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत आभार। और एक बार फिर से सारे देशवासियों को नंबर्स की ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि ये 2022 हम लोगों के लिए निश्चित तौर पे कुछ सकारात्मक संदेश लेकर आएगा। बिल्कुल, श्योर, बिल्कुल। बहुत बहुत ओके, थैंक यू कुणाल जी। थैंक यू सर।